Hello, very good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so dear students, we are supposed to start with 4.2 today. We have seen about LTI system, that is linear time invariant system, like wherein we have seen what do you mean by a system first of all. Then we've seen the classification of system, where we talked about what is a static system, dynamic, time variant, time invariant, linear, non-linear, causal, non-causal, stable and unstable. That was about the classification of system, talking about strictly 4.1. Then we move towards a discussion towards the 4.2, wherein in 4.2 we start towards a very protagonist part, that is transfer function. So in transfer function, we study transfer function is defined as it is for only defined for an LTI system, that is linear and time invariant system. And we have seen, like for example, I want to say a system is a linear system. So then for a system to be linear, if I provide input as 0, then output has to be 0. It is like a mandate. If I give input as 0, x of t equal to 0, then obviously y of t has to be 0. Means there should be 0 initial conditions. So there is an assumption that whenever I want to compute a transfer function for an LTI system, then obviously initial conditions has to be 0. That is initially relaxed system. Okay. Then TF is defined as the ratio of Laplace of output to Laplace of input. Laplace of output to Laplace of input, where C of S corresponds to Laplace of controlled output and R of S corresponds to Laplace of reference input. R for reference input and C for controlled output. This is, you can say, in time domain, and this is what we call it as in Laplace domain. That's what we have seen so far. Then we progress towards the second definition of Laplace transformation, where we have seen that if I make input, that is input to x of t as delta, so delta t का Laplace क्या होता है? What is Laplace of delta t? So we told over that the Laplace of delta t is equal to 1. So I can say R of s equal to 1. Therefore, C of s is equal to transfer function. So I can say the Laplace transform of an impulse response with all initial conditions 0. Because if I provide input as impulse, so output will be if excitation is I mean to say, if excitation is impulse, then obviously response will be the impulse response. If excitation is impulse, then response will be an impulse response. So I can say impulse response, the Laplace of impulse response will give us transfer function. मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? Like I mean to say that TF is equal to Laplace of output upon Laplace of input. Fine. What is Laplace of output, sir? It is Laplace of C of t. Correct? It is Laplace of C of t. Sir, pay attention. बहुत important चीज यहाँ पर discuss होने वाली है. And Laplace of input, where input is R of t. Okay. Now, if R of t, what is R of t? R of t is what? Is an impulse, delta t. If R of t is equal to delta t, then what will be C of t? Therefore, C of t will be equal to impulse response h of t. Correct है सर? ये देखा था हम लोगों ने convolution h of t हम लोग कहते थे. Substitute over here, what you get? So from here, therefore this implies Laplace of delta t. What is Laplace of delta t? Laplace of delta t is what? Can anybody help me out? What is Laplace of delta t? The Laplace of delta t is equal to 1. Yes, and this implies Laplace of h of t. This implies Laplace of h of t, which is given by simple है सर. अगर छोटा h है तो कैपिटल H लिखना होता है, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा और t के जगह पे यहाँ पे s आने वाला है. Fine. Okay, is it clear to you? And this h of s or this h of t, whatever you say, h of t or h of s, will be known as impulse response. H of s in frequency domain and h of t in time domain. This we call it as impulse response. Now, my dear friend, if I substitute whatever I have studied so far in this equation,
So what I'll get, sir? Simple. T of f is equal to Laplace of output. What is output? What is output? H of t. It is h of t. Laplace of h of t, right? Divided by Laplace of delta t. Laplace of delta t. अब सुनिए मैं क्या करने वाला हूं. मैं Laplace of h of t को as it is रखूंगा, सर. I won't be changing h of t as h of s like the way I did earlier. I'll simply keeping it as h of t itself. I won't be changing to h of s. And डेल्टा टी लैप्लास जो मेरा डिनोमिनेटर टर्म है उसको मैं यहाँ पे 1 ही लिखने वाला हूँ. आई एम सिंपली राइटिंग हियर 1 लाइक द वे आई हैव प्रोक्योर्ड ओवर हियर. ओके, अंडरस्टूड सर व्हाट आई डिड हियर. मूविंग फॉरवर्ड, so now I can say therefore TF is equal to Laplace of h of t. Okay, now अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो आई कैन से h of t, which we call it as impulse response. हमारी लैंग्वेज में h of t is what, sir? Impulse response. Impulse response in time domain, because we deals in time domain, sir. We always talk in terms of time domain. What is the time right now? You said it's 10:09 a.m. What will time after a minute? 10:10 a.m. You always talk in terms of time domain. That is the reason I have prevailed h of t in time domain itself. I have not changed to h of s. Understood? Okay, why I'm not making it h of s? I'm keeping it h of t because I always deal in terms of time. Fine, you draw any waveform. You always talk in terms of time. For example, I want to draw sine, I want to draw cos, I want to draw exponential, I want to draw logarithm, I want to draw any arbitrary waveform. I always talk in terms of time. Like always, that this is always a time axis. Very rare you talk about this is frequency. Fine, that is the reason I kept as h of t. Now मुझे बताइए सर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे. So don't you think this L will go here, right? Because h of t को मैंने फ्री कर दिया है. तो अगर मैं h of t को फ्री कर देता हूँ, this L will go and combine with t of f. फाइन, जो tf से कंबाइन हो जाएगा वो. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा L इनवर्स, लैप्लास इनवर्स ऑफ t of f. क्या बात है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ये जो भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया सर, नजीब सर ने कहा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन ये सब डेरिवेशन के पीछे भगवान का नाम है. वहां पे डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ भगवान. भगवान क्या बोलता है वहां पे? LTI, इट इज ओनली फॉर LTI, ओनली फॉर LTI. ओनली फॉर LTI का मतलब ये होता है कि दैट इनिशियल कंडीशंस इज जीरो. भगवान का नाम ऊपर लिखा जाता है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो. मींस हर जगह पे इनिशियल कंडीशन जीरो. यहाँ पे ये नहीं बोलने का सर मैं सुबह 8 बजे से आके बैठा है, 8 बजे से मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया, मैं 9 बजे से मैं इंडक्टर को मैं एनर्जाइज करते जा रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन इज जीरो बिकॉज मुझे LTI कितना बोलता है? LTI मुझे ये बोलता है कि जब कभी भी अगर मैं x of t देता हूँ जीरो तो आई मस्ट गेट y of t इक्वल टू जीरो ओनली. आप बोलोगे नो सर इट इज नॉट जीरो, इट इज 5/6. No, then the system is non-linear in nature. गई भैंस पानी में. समझा? Never you say कि that x of t equal to 0 so y of t something else. जैसे अगर आपको याद होगा ये सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ये सेम चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. मैंने कहा था सारी चीज को आप अपने माइंड में स्टोर करके रखिएगा. अगर आपको याद होगा ये सेम चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. शो दैट लाइंस टू यू. आपको लाइंस आपको मैं रीड करवा देता हूँ. ये लाइन को रीड करिए ना, क्या लिखा है यहाँ पे. For linearity, important condition is that if we apply zero input, then output must be zero. Must लिखा है यहाँ पे, output must be zero. For step 1, for zero input, the system produces minus 5/6. Thus, for system to be linear, the term minus 5/6 should not be present. यहाँ पे अगर आप देखते हो ये वाले टर्म के अंदर x of t अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो 1/12 into 0 will be 0, but 0 minus 5/6 ये वो कल्प्रिट, ये वो हर्डल रह जाता है जिस वजह से आपका सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर बनने वाला है. And then you termed as system is non-linear only because of the presence of this minus 5/6. ये minus 5/6 कहाँ से आया है? कहाँ से आया minus 5/6? This was initial condition. x of t 0 की because मैं 11:30 बजे मैंने मारा and at that time stopwatch was showing me 0. तो जब वहां पे 0 आ रहा है तो मुझे आउटपुट 0 मिलना चाहिए, बट 0 की जगह पे क्या आ रहा है? It was showing me minus 5/6. तो I say the system is non-linear in nature.
The same thing is applicable over here. When you provide x of t equal to 0, y of t has to be 0. Otherwise, you say system is non-linear, and LTI, I mean, say the transfer function is only defined. Transfer function is only defined for an LTI system, so initial condition has to be 0. Is it clear to you? Kindly make a note of this in your notebook, or else you can take a screenshot of this, like how and where I got this h of t equal to impulse response equal to Laplace inverse Tf. And same derivation we have seen over here as well. Impulse response equal to Laplace inverse of Tf. I, what is I? Initial conditions. Initial conditions equal to 0 को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने वहां पे. फिर हमने देखा था impulse response गिव सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक, हेंस फ्री रिस्पांस, नेचुरल रिस्पांस, सिस्टम रिस्पांस, फोर्सफुल रिस्पांस. इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्टेप रैम्प पैराबोला, तो स्टेप रैम्प पैराबोला ऐसे इनपुट्स है जो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहेंगे. So we call this as a forced response. This is a difference between a force-free response and a forced response. In case of force-free response, we give input only at t equal to 0 and then we check the response. कि भाई गाली देने वाला है, कि मारने वाला है, प्यार से बात करने वाला है, कि इग्नोर करने वाला है. ये सिस्टम के बिहेवियर पे हर आदमी का अपना खुद की फितरत, खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसको मैं कहता हूँ ट्रांजिएंट. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम. बट इफ आई एम प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस इनपुट टू इट, कंटिन्यूस इनपुट लगा दिया, फोर्स कर दिया, नहीं तुझे कॉलेज में रोज आना है मंडे टू फ्राइडे, इसको हम कहते हैं फोर्स रिस्पॉन्स. वी कॉल दिस एज स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट. तो यहाँ पे आपको ये वाले केस में यू विल बी एबल टू सी ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट. But if you talk about impulse, you will be only observing transient, not the steady state. Understood? फिर हम लोगों ने ये देखा था स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा था हम लोगों ने वहां पे, व्हाट इज के, सिस्टम गेन, एन देखा था हम लोगों ने, टाइप हमने T1, T2, T8, T ऑल ओवर टाइम पैरामीटर्स. फिर हमने जीरोस पोल्स का डिस्कशन किया, ऑर्डर क्या होता है वो देखा. फिर हम लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया. दैट वी आर डन ओवर देयर. फाइन. फिर आपको शॉर्टकट मैंने दिखाया कैसे. फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्टकट वैसे अगर मुझे करना है, तो डोंट कन्वर्ट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट. इफ आई वांट टू परफॉर्म इन शॉर्टकट मेथड, नो नीड टू गो विद टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट. डायरेक्टली बोल सकते हैं आप 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, ऑर्डर इज 6, टाइप इज 3. सर फिर हम लोग सिस्टम गेन कैसे निकालेंगे? तो गेन निकालने के लिए सिर्फ आप एस को 0 रखिए. तो 10 5 स्क्वायर 25 into 10. And again, this s is a culprit because यहाँ पे 0 कर दिया तो पूरा सिस्टम आपका इन्फिनिटी हो जाएगा. डोंट पुट 0 over there, ignore that s. Okay, so what you will getting answer as 0 + 2 का स्क्वायर 4, 10. So don't you think this 10 will get cancelled and will left to 25/4. देखा तो ऑलरेडी हम लोगों ने. थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ चीजों के लिए बिकॉज ऑलरेडी वी स्टडीड. फिर हमने ये देखा था वहाँ पे शॉर्टकट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमने डिराइव किया था कि अगर कोई भी सिस्टम का पोल रियल एक्सिस पे है, if a system pole is purely on the real axis, so that gives exponential term, and if it is on left side then it is stable, if it is on the right side system is unstable. e raised to -80 bounded stable हो गया है, e raised to 80 unbounded हो जाएगा यहाँ पे. एवरीथिंग वी हैव सीन सर. फिर हम यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा वाला केस कि अगर समझो पोल आर नॉन रिपीटेड एंड ऑन द इमेजिनरी एक्सिस. If it is non-repeated and on the imaginary axis, then it is marginally stable, right? अगर समझो पोल जो है वो लेफ्ट साइड में है, पोल अगर समझो लेफ्ट साइड में है, कैसे है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो इसके अंदर रियल पार्ट भी आएगा -1 जैसे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और इमेजिनरी टर्म भी आएगा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस और -1j. तो -1 जो है वो एक्सपोनेंट की बात करेगा e raised to -t, और ये प्लस और -1j जो दिख रहा है 1, दिस 1 गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेशन. यहाँ पे क्या कहोगे? साइन t. अगर यहाँ पे होता -1 प्लस और -2j, तो अब क्या बोलते हैं? साइन ऑफ 2t, बिकॉज 2 डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी. फाइन. So this gives us the clarification के whether the system will be a stable system, unstable system, marginally stable. Stability की बात हम लोगों ने देखा वहां पे. Plus we also talked about the response, कि response oscillation वाला होगा, कि like decaying oscillations होगा, कि oscillation will be like increasing like the way we have seen here, like unbounded, unstable. यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे क्या है? +1 प्लस और -j. +1 मतलब e raised to t, और यहाँ पे 1j है. 1 मतलब अगेन इट इज sin t, like frequency is 1 over here. Frequency is 1, exponent value is 1 here. e raised to t is sin t. This is what we get. And since it is in the right side, so we say system is unstable, unbounded in nature. Fine. So यहाँ पे क्या आ गया? प्लस और -2j. तो 2 is the frequency, sin 2t. तो this number 2, this decides the frequency. Like अगर वो 4j रहा तो क्या कहोगे? Sin of 4t.
अगर 5j रहा तो 5t बोलोगे, like it is like that way. So if response consists of only sine and cos, then imaginary axis only. Sine cos function gives you only imaginary part location. Okay, फिर हमने ये एग्जांपल देखा, समझो अगर ऐसा कुछ अगर होता है, लाइक 2/s² + 4 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको रिपीटेड पोल आने वाला है, लाइक at plus j2 you'll get double cross, even on minus j2 again you will get double cross. So these are the repeated poles. यहाँ पे आपने क्या देखा था, these were non repeated, like there was only one single cross on 2j, one single cross on minus 2j, that was non repeated. But in case of repeated, you'll be having there two cross on 2j, like two cross on minus 2j. So this also will lead to instability. This is also a case of unstable. Fine. इसका टाइम एक्सिस आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ, यू ड्रॉ द टाइम डोमेन वाला वेवफॉर्म कैसे होगा ये. सो वी से फॉर अ स्टेबल सिस्टम इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन, भले फिर वो सिंपल हो या वो रिपीटेड हो ऐसा या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, बट इट शुड बी प्योरली ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन. सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेबल. व्हाट अबाउट अनस्टेबल सिस्टम? अनस्टेबल वो होता है जहां पे सिंपल पोल हो या रिपीटेड हो या कॉम्प्लेक्स पोल हो, बट राइट में होना चाहिए, लाइज ऑन द राइट. उसमें और एक केस है जहां पे हमने क्या देखा था, द पोल्स आर रिपीटेड ऑन द जे ओमेगा. अगर रिपीटेड है जे ओमेगा पर, इसको भी हम लोग अनस्टेबल कहेंगे. अगर सिंपल पोल है, लाइक इट इज नॉन रिपीटेड ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, लाइक द वे इट इज हियर, non repeated pole on the j omega axis, then we call it as marginally or critically stable. Fine. Why it is known as marginally or critically? Because इसके लेफ्ट में क्या है, what do you have in the left? Stability. राइट में क्या है, इंस्टेबिलिटी. तो डोंट यू थिंक दिस इज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये बाउंड्री बन गया यहाँ पे. तो ये बाउंड्री वो है कि अगर मैं एक कदम यहाँ चला जाता हूँ तो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाऊंगा, एक कदम यहाँ चला गया तो मैं इंस्टेबिलिटी की तरफ आ जाऊंगा. तो डोंट यू थिंक आई एम ऑन द मार्जिन, आई एम ऑन द बाउंड्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. इट इज नोन एज मार्जिनली स्टेबल और क्रिटिकल. इसमें क्रिटिकल कंडीशन में बना के रख दिया वहां पे. एक क्रिटिकल कंडीशन है कि अगर थोड़ा मेहनत किया तो इंसान बच जाएगा, अगर नहीं बॉडी डजंट सपोर्ट ही विल डाई ऑफ. लाइक कहते हैं ना कि ही इज इन द आईसीयू. फाइन, क्रिटिकल कंडीशन में, दैट्स द मीनिंग ऑफ क्रिटिकली स्टेबल. तो अगर यहाँ पर थोड़ा इधर आ गया, इंस्टेबल हो जाएगा. अगर पोल आपका थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, इसको आप क्या कहोगे, इट इज स्टेबल सिस्टम. सो वी से इट इज क्रिटिकली स्टेबल और मार्जिनली स्टेबल. वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड रिमेंबर लाइक व्हाई इट इज नोन एज मार्जिनली स्टेबल, क्रिटिकली स्टेबल. रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझिए. इंग्लिश पूरा प्रॉपर नॉर्मल इंग्लिश है. System response, system का stability, system time constant, these all are decided by pole. Zeros does not contribute in system response, system stability or system time constant. Throughout the discussion सिर्फ हम लोगों ने पोल का ही डिस्कशन किया. हम लोगों ने जीरो का z भी डिस्कस नहीं किया कि जीरो से ऐसा होगा. जीरो डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एट ऑल. जीरो डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल for deciding system response, system stability or system time constant. Is it clear to you? Fine. What is the characteristic equation? When you equate the denominator part to zero, because denominator part से आपको pole मिलता है. When you equate denominator part to zero, you get poles, and poles decide what? Poles decide response, stability, time constant. That is the reason that equation we call it as a characteristic equation, because वहां पे उसका सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम का एट्रीब्यूट, सिस्टम का फीचर को पता चलेगा. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी. डिसएडवांटेज ऑफ टीएफ, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम loses the importance of initial conditions, and it is only applicable for time invariant. What about time variant system? What about non-linear system? No, that is not at all applicable. Transfer function is only defined for LTI. Transfer function is only defined for LTI. अगर non-linear है, टाइम वेरिएंट है, तो आप टीएफ डिफाइन नहीं कर सकते हो ये अप्रोच के थ्रू. फॉर दैट यू नीड टू गो फॉर मॉडर्न अप्रोच, एंड दैट मॉडर्न अप्रोच इज व्हाट? दैट इज योर स्टेट स्पेस मेथड. द स्टेट स्पेस मॉडल इज द मॉडर्न अप्रोच वेयर यू कैन गेट ट्रांसफर फंक्शन बाय कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशंस. ये आपको जो सेल्फ स्टडी का टॉपिक जो दिया है उसके अंदर आपको पढ़ने मिलेगा कि लाइक हाउ I can use a state space model by considering initial conditions and then I'm procuring transfer function. Fine. This is what the benefit of state space model, like why I'm going for modern approach. What is the need of modern approach? Okay. फिर हम लोग मूव करते हैं towards this. ये हम लोग ने देखा था वहां पे क्लियरली. इसका वीडियो भी हम लोगों ने बना दिया है, यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हो क्लियरली. अच्छा मस्त व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो है. फाइन. ये हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जांपल क्वेश्चन क्या था? ट्रांसफर फंक्शन दिया है of a unit step response is a unit impulse function.
यूनिट स्टेप इज एन इनपुट, तो स्टेप इज इनपुट एंड इम्पल्स इज एन आउटपुट। तो कैसे होगा, लाइक ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट में 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम और कैन कम इन वाई वाला कि व्हाट वी विल द सॉल्यूशन फॉर इट। बहुत सिंपल है, खाली आपका चेक करा कि आपका इंग्लिश कितना स्ट्रांग है, लाइक हाउ एबल यू आर एबल टू decode, how able you are able to understand in your English language. It's as simple as that. फ्री एग्जांपल देखा था हमने, कैस्केड वाला हमने देखा था एग्जांपल ये। फिर वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ दिस सच काइंड लाइक this what the examples we have done so far in the previous lecture. You can go through that. रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, इसका पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग इज देयर फॉर ऑल दिस, ये भी हम लोगों ने देखा था, पूरा रिकॉर्डिंग आपको वहां पर मिलेगा। फाइन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं डायरेक्टली स्टेबल नहीं कहूंगा उसको, मुझे इसको पहले प्रॉपर मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मुंबई यूनिवर्सिटी मेथड क्या बोलता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है -2,0, तो फर्स्ट यू ड्रॉ हियर, ओके दिस इज -2,0, सो आई से द पोल इज एट -2, तो आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। डोंट राइट जस्ट कि यहाँ इट इज स्टेबल, बिकॉज अदरवाइज द एग्जामिनर विल से कि यू हैव अडॉप्टेड अ माल प्रैक्टिस। ओके, तो हमें आपको ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। आई शो यू हाउ सपोज टू डू। जो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि -2 वाला अगर है, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा कैसे, दिस इज द पॉइंट वेर आई एम हैविंग -2,0, फिर ऐसे लिखने का मुंबई यूनिवर्सिटी में पोल is equal to -2, therefore CE characteristic equation is equal to S plus 2 equal to 0, therefore TF is equal to 1 upon S plus 2, right? Then what is the inverse Laplace? इसका inverse Laplace क्या होगा? Inverse Laplace इसका तो by using -2t. inverse Laplace transformation. Yes, beta Ritik, you're right. So from that, what you will get, e raised to minus of 2t. Then you draw here e raised to -2t. यहाँ पे आप t बताओगे, यहाँ पे आप बोलोगे this is my f of t, right? Or you can call this as h of t, impulse response. Fine, h of t. Then you draw this. This is e raised to -2. This will be an exponential decay वाला curve. तो इसको ऐसा draw करके दिखाइए आप। So then लिखने का है, since it is since it is bounded, since the response is bounded, so therefore system is stable. इतना बड़ा कहानी लिखना पड़ा ना मुझे, कितना बड़ा कहानी। ये सेम कहानी है ना आपका VJTI, IIT, NIT वाला लिख के दिखाएगा आपको। बट वी नो द शॉर्टकट, हम डायरेक्टली देख के बोलते हैं सिस्टम इज ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज स्टेबल इन नेचर। -2 रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस गिव्स द एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो डायरेक्टली बोलोगे e raised to -2t, आ गया, खत्म, बिकॉज वी नो द शॉर्टकट। ये -2 है, -2 विल कम डायरेक्टली ओवर हियर, e raised to -2। यहाँ पे -2 था, इसलिए यहाँ पे -2 आया। यहाँ पे अगर +2 होता, यहाँ पे +2 आया होता। +2 आता मतलब यहाँ पे सिस्टम विल बी अनबाउंडेड एंड इट विल बी अनस्टेबल केस। फाइन, दिस व्हाट यू हैव टू राइट ओवर देयर। बट यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट हम लोगों ने खत्म किया, बिकॉज वी आर लर्निंग गेट, वी वांट टू क्रैक गेट एग्जाम। So you should know the shortcut, you should know the idea. See, simple, same thing, e raised to -2t sin of 4t। ये कैसे करोगे, इसका एक शॉर्टकट आपको बताया था मैंने। क्या शॉर्टकट है? -2 plus or minus j4, करेक्ट ना सर? the pole is at where is the pole? The pole is at -2 plus or minus j4। the pole is at -2 plus or minus j4। फाइन, किधर किधर आएगा फिर? So what is A here? What is A? A is -2. What is B? B is 4. A is -2, B is 4. सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो? सिंपल है बेटा, A plus or minus JB. So A is -2 and B is 4. So from this I say A is -2 and B is 4. Now I'm using that shortcut. What is the shortcut? A square minus of 2AS plus A square plus B square। बोलिए क्या लिखो यहाँ पे मैं? A square minus 2 into -2, तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4s प्लस A square plus B square। 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 का स्क्वायर विल बी 16, 16 plus 4 20। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर पे डालिए ये, पुट ऑन योर कैलकुलेटर, गो टू इक्वेशन मोड 5 3 क्वाड्रेटिक, सॉल्व करके दिखाइए क्या आंसर है आपको कैलकुलेटर पे। पुट ओवर देयर 1 4 20, व्हाट यू गेट? यू विल गेट 1 रूट एज -2 plus j4
another root as -2 minus j4. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. देखा आपने शॉर्टकट क्या था? ये मेरा शॉर्टकट है. दिस इज माय शॉर्टकट. दिस इज माय शॉर्टकट. आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक रूट है 2, दूसरा रूट है 3, तो आप करोगे s -2 s + 3 = 0, फिर s स्क्वायर प्लस 3s -2s प्लस दिस. कुछ भी फालतूगिरी नहीं करने का. डोंट डू ऑल दिस बुलशिट. डायरेक्टली शॉर्टकट s स्क्वायर -2s प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर आप ऐसे करते बैठ जाएंगे ना, आराम से आधा घंटा निकल जाएगा. बिकॉज इट इज नॉट दैट सिंपल कि a and 2 and 3. So क्या you want me to write like this? S plus 2 plus j4, then again s -2 again -2 minus j4. We'll be writing like this way, right? No, sorry, s plus 2 plus j4, s plus 2 minus j4 = 0. फिर s will be multiplied with this, then this then this will be multiplied with this, then फिर ये. अरे it will take too much of time. गंदा मेथड, बकवास मेथड. You go with this direct shortcut, s square plus 4s plus 20. Remember this shortcut. Kindly make a note of this in your notebook. शॉर्टकट से आपका लाइफ इजी हो जाता है. फाइन. सी, और जरूरत भी नहीं है सर शॉर्टकट करने का. मैंने कहा था आपको, सिंपल है. -2 -2t. यहाँ पे क्या है? सॉरी, -2 -2t -2 j4 आ गया 4 यहाँ पे, sin 4t. खत्म, सिंपल. -2 प्लस j sin t. j टर्म डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी. जो भी यहाँ पे होगा, 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा. यहाँ पे -2 था करके यहाँ पे -2 आया. कहाँ पे है? लेफ्ट में है, स्टेबल. -2t है तो पहले क्या बनाने का, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल सर, रिमेंबर दिस शॉर्टकट. ये शॉर्टकट ही तो मेन चीज है, तभी तो बच्चा सुनता है मुझे. आई एम हियर टू शो यू अबाउट शॉर्टकट सर. The moment you encounter the term e raised to -2t, सबसे पहले ये बना देने का, और उसके अंदर फिर आपको खाली ये डांस करके दिखाना है. खत्म हो गया. इट इज गोइंग टू डीके आफ्टर सम टाइम. Fine, it is going to decay after some time. You draw such kind of things. It is exponential. It is decaying with the way I have shown here. Exponential decay यहाँ पे आपको दिखाना है बाद में. Like this, exponentially decay. cos ओमेगा टी देख के पता चलता है. cos ओमेगा टी मतलब सस्टेन ऑसिलेशंस आने वाला है. सस्टेन ऑसिलेशन मतलब मार्जिनली स्टेबल. फिनिश, डायरेक्ट. ये सब फालतूगिरी करने का जरूरत ही नहीं है. बिकॉज आई एम गिविंग गेट एग्जाम. गेट के अंदर वी नो नीड टू राइट प्रोसीजर. डायरेक्टली आपको वहाँ पे टिक करना ऑप्शन होता है, A B C D. फाइन. e raised to -t sin 4t. खत्म. डायरेक्टली देख के पता चल जाता है. sin 4t मतलब यहाँ पे ऑसिलेशंस भी है, बट ऑसिलेशंस आर गोइंग टू डाई आफ्टर सम टाइम. ये मरने वाले कुछ देर के बाद में. सिस्टम इज स्टेबल इन नेचर. खत्म. नो नीड टू राइट ऑल दैट नॉनसेंस. फाइन. सी, -t के वजह से यहाँ पे +1 आ गया. 4 मतलब 4/16, तो 4/s+1 स्क्वायर प्लस 16, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 17. फाइन. ओके. -1 प्लस j4, 4 4 16, 16 + 1 17. आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. ये ना शॉर्टकट हमारा था. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर? 4 स्क्वायर 16. व्हाट इज b स्क्वायर? 1 का स्क्वायर. तो 4 प्लस दैट इज 16 + 1 17. डन. एंड 2 next is what? minus of 2as. What is a value? -1. -2 into -1 is what? +2. डायरेक्ट. तो समझ रहे आपको शॉर्टकट सब पूरा है. अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट. दिस शॉर्टकट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. दिस शॉर्टकट्स विल रियली हेल्प यू व्हेन यू सॉल्व द एग्जाम्स इन योर गेट और योर इंटरव्यू. क्वेश्चन विल रियली हेल्प यू ओवर देयर. और अगर आप EAC भी सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको क्रॉस चेक करने को हेल्प होगा. बिकॉज मैंने कहा था सिग्नल सिस्टम इज प्योरली अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट. आपने लिख तो लिया प्रोसीजर, बट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, हाउ विल यू चेक? शॉर्टकट. दैट शॉर्टकट विल टेक यू हार्डली अ मिनट, बट दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यस माय आंसर इज करेक्ट. आपके दिमाग में घंटी नहीं बजेगा कि अरे सही है या गलत है, सही है गलत है. विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि भाई मेरे जेब में 10 मार्क आ चुका है, 10 मार्क मेरी जेब में, ये तो कंफर्म राइट है, मैंने चेक किया, शॉर्टकट से भी चेक हो रहा है वो. फाइन. ये भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा. आपको क्वेश्चन अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिस इज -1 प्लस और माइनस j2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, अगेन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस. शॉर्टकट सर, शॉर्टकट. s स्क्वायर -2as प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या है पहला शॉर्टकट मेरे पास में? क्या है यहाँ पे? -1 प्लस और माइनस j2. a वैल्यू इज -1, b वैल्यू इज 2. यूज करिए. a वैल्यू इज -1, b वैल्यू इज 2. फाइन. यूज द शॉर्टकट जो हमने डिस्कस किया हम लोगों ने.
put over there. When you substitute shortcut, a is -1 and b is 2, so you get this. Fine, ये मिलेगा आपको s square plus 2s plus 5. When you substitute a as -2 and b as 2 again, so you get this s square plus 4s plus 8. डायरेक्टली आने वाला है आपको. और एक पोल दिख रहा है -3 पे, खत्म, बन गया TF. Order is 3, 2 plus 1 is 3, type is 0 because there is no s raised to n term available. Characteristic equation solve करिए इसको, simple algebra, get the answer as 0. DC gain को अगर पूछता है तो क्या आएगा gain? What is gain? Substitute s equal to 0. 8 upon 5 3s are 15. Answer here procured. Understood? It is very, very, very simple. If you know mathematics, if you know my shortcuts, you will be able to crack SS very easily. SS को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए. मैथ्स, कौन सा मैथ्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उतना बड़ा बड़ा मैथ्स नहीं चाहिए. सिंपल 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड मैथ्स एंड नजीब सर का शॉर्टकट्स. बस ये दो चीज, ये दो साथ में अपने हथियार लेके जाने का. यू विल बी एबल टू क्रैक एसएस एंड वेरी गुड स्कोर. इसमें चैलेंज टू यू. आराम से आपको 80-90 मार्क्स आराम से का, बिकॉज पूरे सब्जेक्ट के अंदर यू रिक्वायर सिंपल जनरल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स and my shortcuts. That's it. Take my words. Fine. Understood? Now, अब डिस्कस करना है मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स. नाउ वी स्टार्ट विद द टुडे सेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स. तो रीजन था कि मैंने ये चीजें क्यों फिर से दोबारा डिस्कस किया, क्योंकि मुझे आपको ये थोड़ा चीज एक्सप्लेन करना था. कौन सा वाला पार्ट? इफ आई टॉक अबाउट दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स वाला पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट TF इक्वल टू इम्पल्स रिस्पॉन्स. फाइन. हाँ, ये वाला पार्ट करेक्ट मिल गया हम लोगों को. ये वाला, ये चीज, अब ये चीज डिस्कस होने वाली इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है. देखते पहले क्या होता है. मैं कुछ आपको आइडिया दिखाने वाला हूं. जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, वो सेम चीज अभी पेन पेपर के थ्रू डिस्कस होगा. आराम से सुनिए, इजी है. R of S, ओके, 1 अपॉन S टाउ, ये सिस्टम का गेन है और ये आउटपुट है C of S. और मैं अब क्या किया हूं, मैंने यहां से कुछ सैंपल लिया है. Some output I'm taking from the output side and providing as a feedback to this, and I'm providing as a feedback. फीडबैक क्यों लिया जा रहा है? फीडबैक लेने का रीजन एक ही होता है, ये दिस इज अ फीडबैक. Fine, this is a feedback, like this is the path which I'm following. This is the path which is going to follow. Okay, so यहां से इनपुट आ रहा है. इनपुट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ST. जैसे AV के साथ में VI मल्टीप्लाई होता है तभी आपको VO मिलता है. और फिर जो भी आउटपुट आएगा वो यहां से लेने के बाद में इसको फीडबैक दिया जाता है विद अ नेगेटिव फीडबैक. व्हाई डू वी टेक फीडबैक? सो दैट आई कैन चेंज द सिस्टम so that I get a preferred output. Understood what is the meaning of that? जैसे for example, जैसे मैं आपको कहता हूं कि like I am teaching to you and then I take a feedback. Feedback, sometimes I am taking the feedback, sometimes HOD sir is taking the feedback, and after obtaining that feedback, then that feedback is given to the system. कि सर आप ऐसे सिखाइए, so don't repeat things multiple times, so change your speed of teaching. Then I change myself so that I get a preferred output, what the customer is supposed to achieve. That what's the meaning of feedback. यहाँ पे negative feedback दिया है. आपने शायद सुना होगा maybe in analog electronics that positive feedback is for oscillators, negative feedback is for amplifiers. So यहाँ पे मेरा जो feedback है वो negative है. Don't worry sir, when we start with control system,
तब ये चीजें आपको बहुत क्लैरिटी वाइज मिलेगा आपको, इसके ऊपर मैं और एम्फेसाइज करूंगा, बट नाउ इट इज नॉट दैट यूज, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज फार एज एस इज कंसर्न। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज गिवन एज, सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज गिवन एज 1 अपॉन एस टाउ प्लस 1। ये कैसे आया? एक फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये बोलता है, ये भी शॉर्टकट आप याद रखिए। फॉर्मूला बोलता है दिस इज 1, फाइन, दिस इज एस टाउ, एंड सिंस द फीडबैक जो है यहाँ पे फीडबैक, इज देयर एनीथिंग इन द फीडबैक पाथ? फीडबैक पाथ में कुछ है यहाँ पे, जैसे ये फॉरवर्ड पाथ है, दिस इज द फॉरवर्ड पाथ, दिस इज द फॉरवर्ड पाथ, एंड दिस इज द फीडबैक पाथ। व्हाट इज द गेन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ? आपने कहा सर 1 अपॉन एस टाउ। What is the gain of the feedback path? So you say the gain is 1, sir. The gain is 1 because you don't find any block. There is no block here. जैसे यहाँ पे ब्लॉक बना दिया, यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक है क्या? नहीं है। So I say the gain is 1. Fine. So I can say here the H value, capital H value is equal to 1. So now don't ask me what is H. Here H is not impulse response. Don't confuse here. H is the gain of the feedback. अंडरस्टैंड करिए सर, यहाँ पे H is the gain of the feedback. Here H does not represent impulse response. Don't confuse कि सर H मतलब impulse response होगा यहाँ पे. Here H represents the gain of the feedback path. Okay. Now this is numerator. S of tau is the denominator. So now formula बन गया है, लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है सर? व्हाट इज साइन ओवर हियर? माइनस। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखने का, अपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस होता, पॉजिटिव फीडबैक, जैसे ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, उल्टा अपोजिट। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय एच। अगेन शॉर्टकट डिराइव्ड बाय नजीब सर, ये मेरा शॉर्टकट है। अगर आप बुक उठा के देखते हो, बुक में आपको ये देखने को मिलेगा G अपॉन 1 प्लस GH। I don't follow this method. This is my shortcut method. You should know both of them. When we study control system, at that time first I'll be dealing with this procedure, the Mumbai University, the procedural method को follow करेंगे हम लोग, and then I will talk about shortcut. Fine. So now my dear friend, if I substitute the values over here, what will I get? G जो है वो इसका gain है, the G is the gain of the forward path. अभी आपके हाथ में है, आप ऐसे करिए तो क्या मिलेगा आपको? 1 upon s tau, that is the value of G, 1 plus 1 upon s tau into 1. You go with that way, or else you can go with this, the procedure which I have shown you, the shortcut method. Numerator value is the 1, denominator value is s tau, plus again numerator value is 1, and again h value is 1. So you get what? 1 upon s tau plus 1. Kindly make a note of this in your notebook fast. Have you understood? This is forward path, feedback path. The gain of the forward path we call it as G, and the gain of feedback path we call it as H. According to procedure, the formula is G upon 1 plus GH. According to Najib sir, the formula is N upon D plus N into H. Okay, where N is the numerator, which we wrote as 1. Denominator is S tau. Numerator is again 1. H value is again 1. If you don't want to go with my shortcut, no problem. You can go with the procedural strategy. That is what? 1 upon S tau divided by 1 plus 1 upon S tau into 1. फिर S tau आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर S tau कैंसल होगा। क्यों करने का यार? Why you want to have food like this way when you can directly have food in your mouth? So go with this method. It is very simple. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1 upon S tau then divided by 1 plus 1 upon S tau into 1. फिर S tau will go here, फिर S tau will cancel. क्यों करने का लंबा छोड़ा procedure? Because you have less time. You want to do things in a shortcut way. Understood? Can I erase the screen? Sir, this is the formula of the closed loop gain, like the entire Exactly. loop. This is the closed loop gain. What is the meaning of loop? What is the meaning of loop? ये यहाँ पर मैंने उंगली रख दिया. I place my finger here. जहां से शुरू वहीं पे खत्म, जहां से शुरू वहीं पे खत्म. This is my definition of a loop.
इफ एनीबडी आस्क मी व्हाट इज अ लूप, आई सिंपल से कि देख यहाँ पे मैंने उंगली रखा, यहाँ पे मैं शुरू हो गया, यहीं से मैं आगे खत्म हो गया, घर से निकला, घर पे आके लौट गया मैं. दिस इज अ लूप एंड दिस इज अ क्लोज लूप बिकॉज द लूप इज कंप्लीटिंग हियर. फाइन. Okay, this is the forward path and this is the feedback path. Why do we take a feedback? So that I can change my system so that the output will be as the customer want. That is why we are taking the feedback. Simple English language. That's it. Shortcut को समझिए, concepts को समझिए, you will enjoy the things. I'm not here to rectify the things and then create a boredom amongst you. This is my way of teaching the things. This is my way of handling the things. I deal with shortcuts, I deal with concepts, I deal with logic. Is it okay? Fine. I just erase the screen so that we can proceed further now. So now I have here C of S R of S equal to 1 upon S tau plus 1. ये तो समझ गया अभी कैसे आया करके. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर इनटू H. Take the tau outside. Take the tau outside so that I can have S coefficient free. क्या मिलेगा मुझे फिर? 1 upon tau divided by S plus 1 upon tau, है ना? 1 upon tau divided by S plus 1 upon tau. तो सर ये टाउ टाउ, ये ताऊजी है कौन? कौन है ये टाउ? कौन है? देखिए ना, यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं. ये आर है, ये सी है. ओके, हाउ डू गेट ट्रांसफर फंक्शन? तो ये वीओ है, ये वी आई है. तो जो वीओ है ये है, ये है वीओ और ये है वी आई. वीओ के सामने क्या है? कैपेसिटर 1 अपॉन एस सी. वी आई किस किस को जा रहा है? आर को भी जा रहा है, सी को भी जा रहा है. क्या लिखोगे नीचे आप? आर प्लस 1 अपॉन एस सी. शॉर्टकट सर, सिंपल शॉर्टकट. Go to my YouTube channel, check out the video over there for electrical system which I have uploaded last week on I think it was Saturday को वीडियो अपलोड किया गया था वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का. आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कैसे मैंने किया है प्रोसीजर वाइज. एंड देन यू विल सी माय शॉर्टकट, हाउ आई एम यूजिंग शॉर्टकट. मैं शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वीओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एस सी डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 अपॉन एस सी. ओके, सो आई गेट हियर 1 अपॉन एस सी आर प्लस 1 अपॉन एस सी. फिर एस सी यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा एस सी आर प्लस 1. एस सी विल कैंसिल. देन अगेन यू मेक एस कोएफिशिएंट फ्री एंड ऑल दैट. देन लास्ट में आपको क्या मिलता है? 1 अपॉन आर सी 1 plus S upon RC. Means after simplification, after you simplify this term, you'll be left with 1 upon RC, 1 upon RC in brackets 1 plus S upon RC. What is RC? RC is the time constant. पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, maybe in BEE, maybe in analog electronics. RC is your time constant which decides the time required for capacitor to charge, right? So 1 upon RC, 1 plus S upon RC, and tau is replaced by RC. Tau is time constant RC. So 1 upon tau, 1 plus S upon tau. Same thing, 1 upon tau, S plus 1 upon tau. Now don't you see this is a first order system because here S value is 1, in the denominator S value will be 1, it is S value. Don't you think this is written in time constant format? Time constant format में लिखा गया है ना ये. This is a time constant format. Fine. So 1 upon tau S 1 plus S by tau. Fine. Do you know what is time constant format? Do you want me to take it once again back over here? 1 plus ST1, 1 plus ST2, standard form. Standard form is also known as time constant form. देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, write in time constant format. दो नाम है वहाँ पे, standard form and time constant form. Fine. So this is a standard form and time constant format. तो नाउ अभी ये चीज को अगर मैं यूनिट स्टेप देता हूं, सुनिए यहाँ पे क्या होने वाला है. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी वांट टू डिस्कस सर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो वी हैव सीन हियर दिस इज रेजिस्टर, ओके, दिस इज अ कैपेसिटर C, right? This is the capacitor symbol C, this is R, then this is VI, and this is VO. We know very well transfer function is always derived. Transfer function is always derived for Laplace. तो चलिए भाई कर दीजिए Laplace में कन्वर्जन. R तो R ही होता है, ये हो जाएगा 1 upon SC.
यहाँ पे लिखने का VO बाय VI, VO ऑफ S VI बाय S इक्वल टू V ऑफ S के सामने क्या दिख रहा है मेरे सामने वाली खिड़की में 1/SC। ओके, VI ऑफ S फास्ट क्या क्या वी एफ एस के लिए वार प्लस 1/SC। यस, सॉल्व करिए इसको। व्हाट विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस? यू से 1/SC डिवाइडेड बाय एस सी आर प्लस 1 अगेन होल डिवाइडेड बाय SC। मम्मी SC दो बार। ओके बेटा, डोंट प्रॉब्लम, कैंसल इट। So what you left with 1/SCR plus 1. Then what you're supposed to do? Make S make S coefficient free. How to make S coefficient free? So you take S here and बाहर अब क्या लिखोगे? RC. Okay, S plus fine 1/RC. Correct na? So what is RC? What is RC? Let time constant, let tau equal to RC. Let tau equal to RC. Now let's write here itself. So I can say 1/tau divided by S plus 1/tau. Okay, so don't you think this tau, this 1/tau is like a time constant? This is like 1/tau which you're getting over there. Okay, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। Fine. So this is a first order system. This is a first order system. अभी ये सिस्टम को मुझे क्या देना है? यूनिट स्टेप देना है। नाउ टू दिस सिस्टम आई गिव व्हाट? अ यूनिट स्टेप सिस्टम। फाइन, टू दिस सिस्टम आई गिव अ यूनिट स्टेप सिस्टम। तो आपको ये मिला था, आरसी बाहर ले लिया, 1/S/RC। ओके, 1/tau S plus 1/tau, 1/S मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। TF इज व्हाट इज TF? ये अपने को TF आया था, है ना? दिस वाज TF। तो VO इज इक्वल टू TF इंटू VI, करेक्ट और नॉट? VO इज इक्वल टू TF इंटू VI। तो व्हाट इज VI? यूनिट स्टेप 1/S। तो से A बाय S प्लस B/S प्लस 1/tau। समझ रहे क्या चल रहा है यहाँ पे? तो दिस इज योर VI, दिस इज अवर VI and this is 1/tau S plus 1/tau, 1/tau S plus 1/tau। यहाँ पे देखिए आप, 1/tau S plus 1/tau। So this is our TF. This is our TF what we have got so far. तो ये मुझे TF मिला यहाँ पे। सिंपल है सर, वेरी इंटरेस्टिंग है ये TF है। So now I can say VO is what? TF into VI। फॉर्मूला ना? What is TF? 1/tau divided by S plus 1/tau। What is VI? केस 1। केस 1 में मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? केस 1 के लिए यूनिट स्टेप। तो VI will be what? 1/S। So now you say that is what? As per partial fraction expansion, A plus S plus 1/tau plus B/S। Okay, solve करिए इसको। When you solve this, what you will get? When you solve this, what you will get? A/S plus B/S plus 1/tau। ए बी का वैल्यू निकालिए एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ। इसका अगर हम लोग इनवर्स लैप्लास निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ। नाउ सॉल्व करिए एंड गेट द ग्राफ। फाइन, ये ग्राफ मिलेगा ना मुझे इफ आई सब्स्टिट्यूट टी एज 0। अगर आपका टी 0 है तो डोंट यू थिंक e रेज टू माइनस 0/tau विल गिव यू e रेज टू 0 इक्वल टू 1। फाइन, एक सेकंड, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करिए, गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B। A and B, and after getting the value of A and B, you will be left with this particular graph। ये ग्राफ आपको आना चाहिए यहाँ पे, है ना? You will get this as a unit step। So this 1
is a unit step, and this what the response you will be getting. Fine. Okay. So इसे क्या समझा आपको? What you understood from this? Like this is step. Understand this. अब प्रैक्टिकली चीजों को मुझे डिस्कस करना है कि क्या होने वाला है. तो दिस इज input 1. This is input 1. What will be the output you are getting, sir? You are getting this as an output, this as an output. होना चाहिए ना आउटपुट, ये आना चाहिए. ये है स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक ट्रांजिएंट टाइम, ट्रांजिएंट स्टेट, एंड दिस इज स्टेडी स्टेट. यहां से लेके यहां तक ट्रांजिएंट, इट इज इंक्रीजिंग धीरे 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 धीरे, और फिर यहां पे मुझे पूरा स्टेडी स्टेट अचीव होता है, बिकॉज इट इज अ यूनिट स्टेप वाला केस. अभी अगर मैं ये सिस्टम को सिर्फ इतना दिया होता, ओनली वी आई एज 1. वाई 1? वाई वी आई एज 1? बिकॉज केस 2 ना सर, केस 1 was step, case 1 was step, that is the reason 1 upon s. If case 2 is impulse, if case 2 is impulse, so I give simply as 1, simply as 1, r of t delta t, r of s equal to 1. So 1 upon tau s plus 1 upon tau. So what you get answer as 1 upon tau e raised to minus of t by tau. So you get what? Simply this kind of nature of the graph. 1 upon tau e raised to 0 is 1. So at t equal to 0, you get 1 upon tau into 1, that is 1 upon tau. And at t equal to infinitive, you get answer as 0. So you get simply this graph. So can I say impulse response gives only the natural response, because steady state is going to decay after some time, no steady state at all. So steady state is not defined since no steady state itself. So hence we use unit step, because step gives us bounded input for a bounded output. Steady state is available, and hence we can compute steady state error. Any doubts so far? Any doubts so far? ए बाय एस था, ए और बी को कंप्यूट करिए. फाइन. सो यू गेट ए एज 1, बी एज -1. So a by s is 1, that is 1 upon s is 1, and 1 upon s plus 1 upon tau will give you e raised to minus of t by tau. And then you have to take the values of t as tau, t as 2 tau, t as 3 tau, t as 5 tau, and so on. आपको t वैल्यूज वैसा लेते जाना है. Sir, can you repeat your last statement? I didn't get it. आपको ये कैलकुलेशन समझा कैसे आया ईशान? सर वो लास्ट में आपने वो t is equal to वो वाला नहीं समझा, बाकी मैं समझा. हाँ, ओके. ये समझा कैसे आया? c of t. सुनो, once again I'll repeat for you, no worries. TF मुझे क्या मिला था? What was my TF? TF what I got TF as 1 upon tau s plus 1 upon tau. ठीक है, TF क्या मिला हम लोगों को? 1 upon tau s plus 1 upon tau. What is the definition of TF? VO by VI. So in order to get VO, I just need to multiply VI with TF. So I can write 1 upon tau s plus 1 upon tau into VI. तो केस 1 पहले हम लोगों ने स्टेप दिया, तो स्टेप देने पर मुझे क्या मिला? 1 upon s, राइट? Just multiply with TF 1 upon s because it is step. Fine. Then as per the partial fraction expansion method, I can write a upon s plus 1 upon tau plus b upon s, right? Get the value of a and b. A will comes out to be +1 and b will comes out to be -1. So a as +1 will give you answer as, यहाँ पे एक सेकंड ना, ये वाला अगर देखते हो आप, come over here, don't confuse yourself. A as a upon s and b as s plus 1 upon tau. A as a upon s and b as b upon s plus 1 upon tau.
A आपको आएगा +1. Fine. Over here you will get answer as A will be equal to +1 and B will come out to be -1 in this case. Okay. So 1 upon S will give you answer as 1. -1 है तो -1 बीच में आना चाहिए. 1 है यहाँ पे तो 1 ही आएगा. What is 1 upon S plus 1 upon tau? तो e raised to minus of t by tau. Correct है? Okay. Now you tell me if I substitute t as 0. So e raised to 0 will give you what answer? 1. So 1 minus 1 will be 0. So don't you think we will be having graph like this? ठीक है सर. ओके सर, आई गॉट इट नाउ. एंड एट इंफिनिटी वो टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ 1 आएगा. ठीक है. हाँ, करेक्ट. सो यू गेट सच काइंड ऑफ ग्राफ. तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने क्या सीख रहे हो कि इनपुट आपका 1 है. लाइक प्रिंसिपल इज टेलिंग यू यू हैव टू कम टू कॉलेज एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. अभी मंडे का सुबह का दिन, अरे यार क्यों जाने का यार, क्या बोर हो रहा है यार, शे यार बाद में नहीं जाता बटा. ट्यूसडे का दिन आ गया, ठीक है थोड़ा जाके आता हूँ मैं. आप गए, एक लेक्चर अटेंड किया, घर पे आ गए. वेडनेसडे के दिन आप गए, 4 लेक्चर अटेंड किया, आप घर पे आ गए. थर्सडे के दिन गए, आपने 6 लेक्चर अटेंड किया, आप घर पे आ गए. फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स यू विल बी रेगुलर इन द क्लास बिकॉज यू हैव अचीव्ड दैट स्टेडी स्टेट. कह रहे यार ठीक है अभी तो आदत हो गया यार, फाइन. थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा नाटक किया, नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है. तो वो जो पीरियड था 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां तक जब आपको टाइम लगता है सेटल होने के लिए, उसको मैं कहता हूं ट्रांजिएंट स्टेट. और इसके बाद का जो फेज है इसको मैं क्या कहता हूं? स्टेडी स्टेट. ओके. नाउ पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टूडेंट क्या बोलता है कि सर मैं 8 लेक्चर में से सिर्फ 7 लेक्चर अटेंड करने वाला हूं. शाम का जो लेक्चर होता है ना 4 से 5 का सवाल ही नहीं होता सर मेरा अटेंड करने का. why you don't want to attend 4 to 5 lecture? Sir, I stay in Virar. सर ट्रेन में बहुत गर्दी हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के तो धज्जियां उड़ जाती है. I won't be able to attend 4 to 5 का लेक्चर. I'll be leaving sharp at 4. ठीक है ना, एटलीस्ट 9 to 4 तो बच्चा बैठ रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ठीक है. तो ये जो आया मुझे, तो I was expecting this, right? And what I am getting, sir, what I am getting this. तो ये जो गैप है दोनों के बीच का, इसको मैं कहता हूं स्टेडी state error. This gap is known as steady state error. Salman Khan ka aim was Aishwarya Rai. He was not able to achieve it. He got max to max Katrina Kaif. ये दोनों का जो गैप है बीच का, जिसमें वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है लाइक ये फाइन, ओके आई हैव अचीव्ड समथिंग. तो ये जो गैप है, जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस वाले जो गैप को मैं क्या कहूंगा? स्टेडी स्टेट एरर सर. लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखते हो ना, इफ यू कम हियर सर, इफ यू कम हियर एंड चेक इट आउट, फाइन एक सेकंड. इफ यू कम हियर इन द इंपल्स रिस्पॉन्स, डेल्टा टी का इंपल्स इज 1. सो आपको सिर्फ टीएफ जो है वही मिलने वाला है, जिसका इक्वेशन आपने यहाँ पे इसका आपको रिजल्ट आया टाइम डोमेन में, ये आपको आंसर आया. सर नाउ यू टेल मी ट्रांजिएंट खत्म होने के बाद में क्या आपको स्टेडी स्टेट मिल रहा है? आर यू एबल टू सी स्टेडी स्टेट? नो सर, बिकॉज द वैल्यू इटसेल्फ इज 0. सर नाउ यू विल बी एबल टू कंप्यूट स्टेडी स्टेट एरर. अरे सर काय का एरर सर, वो आदमी मर गया वो. I won't be able to compute steady state error because there is no steady state itself. So I mean to say, impulse response will only give you natural response, system response, force-free response, because steady state error is not defined because there is no steady state itself. That is the reason we provide unit step. Why? Because it will give you bounded output for a bounded input. एंड स्टेडी स्टेट इज ऑल्सो अवेलेबल. आपका इनपुट भी बाउंडेड था, आपका आउटपुट भी बाउंडेड मिला, और आपको स्टेडी स्टेट एरर भी आप कंप्यूट कर पाते हो. इसीलिए यू प्रोवाइड यूनिट स्टेप एंड नॉट यूनिट इंपल्स, बिकॉज इंपल्स रिस्पॉन्स ओनली गिव्स यू नेचुरल रिस्पॉन्स, सिस्टम रिस्पॉन्स, फ्री फोर्स रिस्पॉन्स. सेम वर्डिंग्स यहाँ पे कहा था हम लोगों ने, सेम वर्डिंग्स. Impulse response gives system behavior, system characteristic, also called as free response, natural response, system response. फाइन. एंड इफ यू प्रोवाइड स्टेप, रैम्प, पैराबोला, जो कि बोलते हैं कि रोज आना है कॉलेज में मंडे टू फ्राइडे, इसको मैं क्या कहता हूँ? फोर्स रिस्पॉन्स. ये मैंने उस दिन आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया था, आज मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है. इज इट क्लियर टू यू सर? इफ देयर इज एनी डाउट, दैट पर्सन कैन स्टे, अदर्स कैन एग्जिट. दिस कंप्लीट्स विथ माय इंपल्स रिस्पॉन्स. अभी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई हैव टू टेक दी
व्हाट क्या करना है अगले क्लास से हम लोगों को? इम्पल्स रिस्पॉन्स के कुछ हमको न्यूमेरिकल्स देखना है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होने वाले हैं। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। सी यहाँ पे बहुत सिंपल उन्हें दिया गया है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया जाता है, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया जाता है और पूछा जाता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालिए। सर बहुत इजी है सर, व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स सर? एज गुड एज ट्रांसफर फंक्शन। बट यहाँ पे मुझे टाइम डोमेन में निकालना पड़ेगा, तो जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट इन टाइम डोमेन फॉर्मेट, यू विल गेट द आंसर एच ऑफ टी, दैट्स इट। आप एच ऑफ टी निकाल लीजिए, आपका काम हो जाता है। सिंपली यू हैव टू गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ एच ऑफ टी। सी सिंपल, फाइन। ये आपको क्वेश्चन दिया था, बोले जाएगा, आपको बोला जाएगा इसका इम्पल्स निकालिए। अब क्या करोगे? ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बाद में ये जब टीएफ जो आएगा, ये टीएफ को आप एच ऑफ टी में कन्वर्ट करिए, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, हो गया, खत्म हो गया। एंड वी कॉल दिस इज माय इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इजी। Impulse response is just taking the inverse Laplace of the transfer function. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सर, ये वेरी इजी है। Impulse response is the inverse Laplace of the transfer function. Inverse Laplace of transfer function is your impulse response. ये सेम वर्डिंग हमने रिपीट किया था ना बेटा, यहाँ पे वही तो बोला था मैंने यहाँ पे आप लोगों को, अगर याद होगा। सेम थिंग यहाँ पे मैंने रिपीट किया था। It is the inverse Laplace of transfer function will give you impulse response. नोट्स प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है, मेरा लेक्चर्स प्रॉपरली फॉर्मेटेड किया लेक्चर्स है। आपको यू विल सी मल्टीपल थिंग्स अगेन एंड अगेन, इसलिए ये चीज मैंने आज डिस्कस किया है। ओके, दिस कंप्लीट्स विद माय इम्पल्स रिस्पांस। फाइन। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग अगले सेशन में, और फिर लास्ट सेशन पर जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्यूसडे विल बी द लास्ट लेक्चर for 4.2 from my side. Tuesday we'll be ending up with this session. Thank you all of you. You guys can exit. जिसको doubt है others can go. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Happy weekend to all of you. Take care. Remember my shortcuts will definitely help you. Thank you, sir.